Welcome students. Today we are going to get on the chapter, the 100 dresses part 1. It has two sections. The second one is also after this. We will study after this. Until now, in 100 dresses, this is from class 10, English book, first line, it's chapter 5. And until now we have know that there are three characters in this, basically mainly there are three characters in this chapter. The first one is Maddie, second one Peggy, and the third one is Wanda Petronsky. She is a Polish girl. Okay, she is a Polish girl. Polish means they belong to Poland but have settled in America. Until now, what we have learned that Wanda has been teased, or Wanda is generally or always teased by Peggy and Maddie. They both wait for her to make fun of her, and this had made them late. One day, then only they came to notice that she was not coming to school, or she was not attending the school since 2 days. They also, it is also noticeable that Wanda sits in that section of the class where the most rough boys sit. They don't score good marks. The much food stuffing goes on in that section, and also they hysterical laugh. The hysterical laughing also comes from that section of the class. But it is not such that Wanda is a naughty girl or a wicked girl. No one has seen her even smile. But why does she sit there? One of the reasons that has been known to us that she comes from Hawkinside. Her feet is completely caked with mud. That's why it may be the reason that she sits there. Now, what have made Peggy and Maddie notice about Wanda that she had made them late to the school as they were waiting for her to make fun of her outside the school, and she didn't arrive. Now, coming to the next section. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Their names easy to say, like Thomas, Smith or Allen. There was only one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. तो यहाँ पर सबसे पहले नाम के बारे में बताया गया है कि उसका नाम वंडा पेट्रोन्स्की था, और रूम नंबर 13 जिसमें वो बैठती थी, वहां के बच्चे, उन बच्चों के नाम इस तरह के नहीं थे जैसा कि वंडा पेट्रोन्स्की थी। उन लोगों के नाम आसान थे बोलने में, जैसे थॉमस स्मिथ या एलन। जैसे हमारे यहाँ एक भारतीय नाम है, आप लोगों के नाम है, हमारे लिए क्या है, वो नाम इजी टू स्पीक है। लेकिन जैसे ये नाम कुछ दूसरे देश के आ जाते हैं तो we try to make fun of them. It is childish behavior, but as you are a child, it can be accepted from you, but it should be avoided to make fun of the names. So they belong to that part of the region where names like Thomas Smith and Allen is easy to speak, where there was only one name, Bounce, Willie Bounce. एक लड़के का नाम था बाउंस, विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि वो उसका नाम मजाकिया है, लेकिन वेंडा पेट्रोन्स्की की तरह उसका नाम मजाकिया नहीं था। Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. Wanda के कोई दोस्त नहीं थे, वो हमेशा स्कूल अकेले ही आना जाना करती थी। वो हमेशा एक ब्लू कलर का फेडेड मतलब धुंधला, जिसके रंग हल्के पड़ गए हो, तो हल्के रंग का एक ब्लू ड्रेस पहनती थी, जो कि ठीक ठाक से मतलब हैंग राइट का मतलब हो गया कि
समय दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती थी। कभी कभी तो जब वेंडा खड़ी होकर छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच हम लोग जिसमें हिंदी में हम लोग भारतीय में कितकित कहते हैं ना, तो कितकित खेलती रहती थी छोटी बच्चियां, और वेंडा उसे खड़ी होकर देखती थी। तब बहुत सारी लड़कियां, दूसरी लड़कियां उसे आकर घेर कर खड़ी हो जाती थी। वेंडा Peggy would say in a most courteous manner, as though they were talking to Miss Mason, as she were talking to Miss Mason. Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge. तो यहाँ पर मजाक कैसे उड़ाया जाता था, यहाँ पर ये अब निकल कर आ रहा है। इसमें है कि वेंडा पैगी जो है बहुत कोर्टियस मतलब इज्जत देने वाली भाषा में, इज्जत देने वाले तरीके से वो कहती वेंडा, जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही है। मिस मेसन उनके टीचर का नाम है। तो पैगी इस तरह से वेंडा नाम लेती थी जैसे कि वो मिस मेसन को इज्जत देके बुला रही है, उसी तरह से। और वेंडा जो है एक सामान्य सा झटका अपनी गर्दन को, हल्का सा झटका अपनी गर्दन को देती थी अपने दोस्त की तरफ देखने के लिए। और उसके बाद वो पैगी कहती, टेल अस, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? तुमने क्या बताया था कि तुम्हारे क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी या कबर्ड, तुमने क्या बताया था कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं? Then her thin lips drew together in silence. Then her thin lips drew together in silence. Sorry. 100, Vanda would say. और वेंडा का जवाब होता था 100, 100 ड्रेसेस। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक्सक्लेम हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं और कहते हैं 100। जो छोटी बच्चियां जो हॉपस्कॉच खेल रही है वो भी रुक जाती है इस बात को सुनकर और वो सुनने लगती है। उसके बाद वेंडा कहती है, yeah, 100 all lined up. Then her thin lips drew together in silence. वेंडा उसके बाद जवाब देती, हाँ 100 के 100 हैं और सभी लाइन से रखे हुए हैं। उसके बाद पतले होठ एक साथ जुड़ जाते थे और वो शांत हो जाती थी। पैगी फिर से आगे बढ़ाते थे अपने मजाक को और कहते थे, what are they like, all silk I bet? तो पैगी कहती थी कि मैं तो शर्त लगा सकती हूँ, सॉरी, पैगी कहती थी वो किस तरह से है, किस तरह के हैं, मैं तो शर्त लगा सकती हूँ कि वो सभी सिल्क के हैं, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वेंडा का जवाब था, हाँ सिल्क के हैं और अलग अलग रंगों के हैं। सिल्क मतलब रेशम। वेलवेट टू, फिर उधर से पूछती कि क्या मखमल के भी हैं, वेलवेट के भी हैं, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, all lined up in my closet. और वेंडा जो है बिना कोई अपना भाव भंगिमा में बिना किसी परिवर्तन को किए वो कहती कि हाँ बिल्कुल वेलवेट भी है और 100 ड्रेसेस भी है और सभी के सभी मेरे क्लोजेट में लाइन से रखे हुए हैं। Then they would let her go, and then before she would gone very far, they would have bursting into shrieks and peals of laughter. और उसके बाद वो लोग उसे जाने छोड़ देते थे, जाने दे देते थे, और इससे पहले कि वेंडा ज्यादा दूर निकले वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। 100 dresses, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What the story? तो उधर से जवाब क्या आता था कि 100 ड्रेसेस, उधर से मतलब आपस में ये पैगी मैडी ये लोग आपस में चर्चा कर रही हैं और आपस में वो चर्चा करते हुए कहती है 100 ड्रेसेस। मुझे तो पूरा पता है कि उसके पास इकलौता एक ही ड्रेस है जो वो हर रोज पहन के आती है, तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? क्या कहानी बनाती है? How many shoes did you say you had? और तुमने कितने जोड़े जूते कहा था तुम्हारे पास है? 60 pair all lined up in my closet.
जवाब देती कि 60 जोड़ियां मेरे पास जूते हैं और वो सभी के सभी मेरे क्लोजेट में हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike। और उसके बाद exaggerated मतलब होता है जब हम बढ़ा चढ़ाकर किसी भाव को प्रदर्शित करते हैं वो। तो exaggerated politeness बढ़ा चढ़ाकर शांतिपूर्वक बहुत बढ़ा चढ़ाकर सौम्य होकर वो पूछा जाता उसके बाद क्या सभी एक जैसे? Oh no, every pair is different, all colors all lined up। और वेंडा जवाब देती नहीं नहीं, सारे जोड़ियां अलग अलग हैं, अलग अलग रंगों की हैं और सभी एक लाइन से रखी हुई है। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always last to leave। Peggy जिसने इस गेम का इजाद किया था, जिसने आविष्कार किया था, मतलब जो मजाक उड़ाना है वेंडा का, इस चीज का, ये जो खेल था इसको पैगी ने शुरुआत किया था। और मैडी जो उसका एक ऐसी दोस्त थी जो कभी उससे अलग नहीं होती थी, वो लोग हमेशा वहां से हटने वालों में से लास्ट हुआ करते थे। कहां हटने वालों से? वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए जो भीड़ जमा होती थी बच्चों की, उनमें वही लोग दोनों सबसे आखिर में हटा करते थे वहां से। Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, touching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing her walk to school alone। तो सामान्यतः क्या होता था कि वो स्कूल आने समय जब वो लोग उसको रोकती थी, तो जब वो छोड़ देती थी, रोकने के बाद मजाक उड़ाया जाता, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता, उसके बाद वेंडा जो है आगे बढ़ती सड़क पर, उसकी आंखें डल थी। डल का मतलब उदास भरी थी, उसके मुंह बंद रहा करता था, अपने कंधों को वो कभी कभी झटका करती थी, जो उसका रेगुलर था, झटका करती थी और आखिरकार वो स्कूल फिर अकेले पहुंचती थी। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for art if she saw an animal mistreated। Peggy जो है सच में कठोर नहीं है, मतलब जिस तरह से अभी तक में नजर आया है कि Peggy मजाक उड़ाती है वेंडा का, तो वो मजाक उड़ाती थी वेंडा का, लेकिन वो निर्दयी नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुलीज कहा जाता है, जो बड़े स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट को परेशान करते हैं, उन्हें बुलीज कहा जाता है। तो वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी, और अगर किसी जानवर के साथ गलत व्यवहार होते देख लेती तो वो घंटों रोया करती थी। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie and she wasn't just an ordinary person else? Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry। तो उससे अगर कोई पूछता कि क्या तुम वेंडा से जिस तरह का व्यवहार करती हो वो निर्दयी नहीं है, वो कठोर नहीं है, तो वो आश्चर्यचकित होकर कहती, कठोर? उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है, तो वो झूठ क्यों बोली? और दूसरा कि वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसका उतना अजीब सा नाम भी नहीं होता, और वेंडा के कारण वो कभी भी रोया नहीं करती। As for Maddie, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that, she was bothering her। लेकिन अगर मैडी के बारे में कहा जाए तो ये जो पैगी हर रोज वेंडा के साथ इस तरह का व्यवहार करती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं और ये वो कितने हैं, ये अब उसे चिंतित कर रहा है। मैडी was poor herself। मैडी खुद भी गरीब थी। She usually wore somebody's hand-me-down clothes। वो हमेशा या बराबर ऐसे कपड़े पहनती थी जो वो किसी से मांगा करती थी। Thank goodness she didn't live on the boggin side or have a family। और भगवान का वो शुक्र मनाती थी कि वो बॉगिन साइड में नहीं रहती थी या फिर कोई उसका फनी सा नाम नहीं था।
Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. कभी-कभी पैगी जब वैंडा का मजाक उड़ाने के लिए उस सभ्य तरीके से उस शांत आवाज में उसका मजाक उड़ाती तो उस समय मैडी बहुत ही एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी महसूस किया करती थी और उसके हाथ में जो उस समय छोटी-छोटी गोलियां रहती थी वो उन्हीं को घुमाती और कुछ भी नहीं करती। Not that she felt sorry for Wanda exactly. ऐसा नहीं था कि उसको वैंडा के लिए पछतावा होता था। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. But suppose Peggy and all the others started it on her next. तो वो कभी भी वैंडा के ऊपर ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ये वाला गेम का इजाद नहीं की होती, ड्रेस वाला। और अगर मान लो पैगी उसका मजाक उड़ाने की जगह मैडी का मजाक उड़ाने लग जाए तब क्या होगा? She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. वो वैंडा की तरह गरीब तो नहीं थी, वैंडा के जितने गरीब नहीं थी, लेकिन वो गरीब तो थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing her down the cross. और कम से कम उसके पास इतना दिमाग तो होता कि वो ये नहीं कहती कभी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। ये सारी सोच मैडी की है, मैडी ऐसा सोच रही है और वो नहीं चाहेगी कि कभी भी ये खेल, ये जो मजाक उड़ाने वाला खेल है, ये उसके ऊपर शुरू हो जाए। और वो आशा करती थी कि पैगी वैंडा पेट्रोसी का मजाक उड़ाना बंद कर देगी। तो इस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि पैगी वैंडा को रास्ते में रोककर, जनरली स्कूल आने समय रास्ते में रोककर उसका मजाक उड़ाते हुए एक सभ्य आवाज में पूछती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? तुमने क्या बताया था तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? और वैंडा का जवाब आता 100। और उसके बाद वो हंस पड़ती थी वो सभी लड़कियां। उसके बाद फिर वो और पूछती कि तुमने कितना बताया था, तुम्हारे पास कितनी जूते हैं? तो वो कहती 60 जोड़े हैं। और ये सारी चीजें जो है उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसा नहीं था कि मजाक केवल इसके कारण था, असल में सभी को ऐसा महसूस होता था कि वो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने के पीछे या ऐसा समझने के पीछे कारण ये था कि वैंडा हर रोज एक ही तरह का ड्रेस या एक ही ड्रेस हर रोज पहनकर आया करती थी, जो लगातार पहने जाने के कारण धुंधला हो गया था, उसका रंग हल्का पड़ गया था। और वो आयरन भी नहीं किया हुआ रहता था। इस कारण से जब पैगी उससे पूछती और जवाब में वो बताते कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इस बात से पैगी बहुत चिढ़ती थी और इसी के कारण से वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैडी जो खुद भी गरीब है, वो भी दूसरों से कपड़े मांगकर पहना करती है। उसे इस बात को अब खराब लगने लगा था, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, लेकिन वो पैगी को कुछ कहती नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि शायद ये खेल उसके साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी गरीब थी, वो भी दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहना करती थी। वो चाहती थी कि काश पैगी वैंडा पेट्रोसी का मजाक उड़ाना छोड़। इसके बाद का हिस्सा जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको पूरा कर लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।